عموماً اور احمدیوں کو خصوصاً نصیحت کرتے ہیں کہ انہیں اس حملے پر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا ہے برافروختہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ خدا تعالیٰ کا پیارا ہے۔ جو شخص اس پر حملہ کرتا ہے وہ ہمارے جواب کا محتاج نہیں، اسے جواب اللہ تعالیٰ دے گا۔ مٹی پاؤ، ٹھیک؟ جب اپنی باری آئی تو 20 اگست 1935 کا الفضل اخبار کھولیں گے تو اس میں صفحہ نمبر 5 پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد میں وہ 3 باتیں بتاتا ہوں جو میرے نزدیک نیشنل لیگ کو اپنے پروگرام میں شامل کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی اور مقدم چیز جس کے لیے ہر احمدی کو اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے وہ حضرت مسیح موعود اور سلسلے کی توہین ہے۔ یعنی اگر مرزا قادیانی کی توہین کی جائے گی یا ہمارے سلسلے کی حد تک کی جائے گی تو خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی پاک کی توہین کی گئی، مٹی پا دو۔ یہ ہے مرزائیت، اس کا نام وہ اسلام رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ان کی اندر کی جو کیفیت ہے نا، یہ کسی نبی کو نہیں مانتے، زبان سے کہتے ہیں ہم نبیوں کو مانتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہیں مانتے یہ کسی کو۔ یہ نبی پاک کی توہین ہو تو کہتے ہیں مٹی پا دو، ہمیں برا فروختہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کی توہین ہوئی آپ پہ اللہ جواب دے لے گا۔ مرزا قادیانی کی توہین ہو تو کہتا ہے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور مسٹر بمباسٹک ہے، مرزا قادیانی کی توہین ہو نا تے آخری قطرہ تک تو بہا دینا، اپنا بھی تے اپنے بچیاں دا بھی تے اپنی اولاد دا بھی، ٹھیک ہے؟ بھائی عامر سیال صاحب یہ واٹر صاحب کو اٹھائیں۔ لیکن اگر نبی پاک کی توہین ہو جائے تو مٹی پا دینی ہے، ٹھیک ہے واٹر صاحب؟ چلیں جی آپ کریں بات جس نے کرنی ہے۔ ہاں مرزا قادیانی کے لیے انشاءاللہ بولو کہ اگر اس کی توہین ہوگی تو تم آخری قطرہ اپنا بہا دو گے، اپنے خون کا قطرہ، اپنے بچوں کا خون کا قطرہ آخری بھی بہا دو گے۔ لیکن نبی رحمت کی توہین ہوگی تو مٹی پا دو، چھٹو اپے اللہ جانے تو اللہ دا نبی جانے، اپے اللہ بدلہ لے لے گا۔ جاؤ لانتیو۔ آج وہ کرسچن آ کے آپ کے منہ پر تھوک کر گیا، کل بھی گیا تھوک کر، اس نے کہا مسیح کی توہین کرتے ہو، اور تمہارے سے تو پیغمبر اسلام کی عزت محفوظ نہیں، تمہاری زبانوں سے اور تمہارے ہاتھوں سے، تم مسیح کی توہین کرتے ہو۔ لانا سی تاجدار ختم نبوت، سیدھی گل کر جیڑی کرنا ہے، گل کر سیدھی۔ نبی پاک کی جو توہین کرے وہ یہ مٹی پا دو، مٹی پا دو، توہین ہو جائے مٹی پا دو۔ نہیں باہر اگر ہو ملک میں نبی پاک کی اور سنتے صحیح اور سنتے اور مٹی تنو کہہ گیا نا تیرا خلیفہ مٹی پا دو، اور نبی پاک کی توہین ہو جائے مٹی پا دو۔ اگر پاکستان ہی چوئے تے پھر سر سے اگر مرزا قادیانی کی توہین ہو جائے تو خون دا آخری قطرہ تسی بہا دینا ہے، لیکن نبی پاک دی توہین ہوئے تے تساں لانتیاں نے زمین دے تھلے منجی دے تھلے وڑ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ جواب دے لے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس لعنت نو لے کے اتھوں تسی دوڑے ہو پاکستانوں، اچھا جی، اینو چل کے اتنے ملحداں دی چولی چ بہ کے پھلانے ہیں۔ تو تسی پاکستانی بیٹھے ہو؟ اسی پاکستانی بیٹھے ہیں تواڈے انتظار چ کہ تسی اتھوں چھتر کھا کے واپس آؤ گے نا تو تانوں پھر ادھر نوں دھکا ماریں گے تے قادیان ٹر جائے۔ اچھا جی، اے کدوں ہوئے گا؟ اے جدوں تسی اتھوں ٹھڈے کھا کے جاؤ گے نا، کرسچن ہولی ہولی جاگدے نے پہ، انہوں نے پتہ پہ لگدا ہے کہ تسی ایسے لعنتی ہو کہ تواڈے کولوں کسے دی عزت محفوظ نہیں۔ جدوں تانوں ایسے دھکا کران گے نا تسی پاکستان جاؤ گے نا، اج تانوں آمدی اگے ایک چھتر پیٹھ تے ماریں گے پر قادیاں نال بھیج دیں گے۔ ہاں جی، تے تہاڈی پٹ کتے ہونی ہے اس لیے؟ اسی اتنے پاکستانی ہوواں گے۔ اچھا تسی پاکستان ہوو گے؟ اسی صوفے تے بیٹھے ہوں گے، تہاڈی پیٹھ تے چھتر مار کے پراں بھیجاں گے۔ اچھا جی جی آہو جی، آہو جی۔ دیکھو اے قوم پیدا کیتی مرزا قادیانی نے۔ اے جڑی تہاڈی قوم ہے کنے پیدا اے غلاظت تے نجاست دنیا دے اوتے چھڈن نالوں اے رسول اللہ نے پیدا کیتی ہے، اے بڑی صاف ستھری قوم، اے لوٹے پاسے اس بکواس نہیں کرنا، بکواس نہیں کرنا۔ اے ندا نصر علی، اے ندا نصر علی قوم مرزا قادیانی نے پیدا کیتی، ندا نصر علی۔ زندہ باد، زندہ اے جڑی ندا نصر علی قوم ہے کنے پیدا کیتی؟ بشیر الدین محمود احمد نے۔ اے جی واٹر صاحب جڑے نا اصل تہاڈی جماعت جی جی سر جی السلام علیکم۔ تسی اپنا دال وچ گل کردا تے پاکستان نال وچ سر جی بات پتہ کیا ہے؟ پتہ نہیں جی۔ آپ لوگوں کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی
کہ آپ اگلے بندے کو 2 گھنٹے بیٹھ کے بول رہے ہوتے ہو، پھر وہ بھی آپ کے ویک پوائنٹ پہ آ کے بولتا ہے، پھر آپ کہتے ہو جی شاطمیت ہو گئی. کون سا ہمارا ویک پوائنٹ ہے؟ دیکھیں جی، جو ہمارا ویک پوائنٹ ہے وہی آپ کا ویک پوائنٹ ہے. مثلاً کون سا؟ رسول پاک کی ذات پر نہیں، رسول پاک کی ذات کی تو انہوں تو وہ تو آپ کے خلیفہ نے کہا نا کہ رسول پاک کی تو انہوں تو مٹی پا دو. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. یہ میں بات دکھاتا یہ ہوں، ہوتی ہے تو یہ پھر میں ہمارے دکھاتا خلیفے ہوں، میں نہ دکھاتا ہوں، ابھی عامر صاحب ابھی نہ دکھائیں، ابھی ٹھہر اور بھی جائیں. دکھاتا ہوں میں. وہ عامر صاحب 1 منٹ ٹھہر جائیں. آپ کھول کے سارا دن دکھاتے رہنا. بات پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کے سارے بندے جو ہیں نا وہ فوراً مرزا صاحب پہ جائیں گے، ان کی فیملی پہ جائیں گے. تو آپ جانوروں نبی کے پاک پہ اوپر. چلے جاتے ہیں نا جواب نا، فوراً آپ نبی پاک پہ چلے جاتے اگر ہم نبی پاک پر جا سکتے ہوتے، ہیں. جا رہے ہیں، سکتے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا اگر کہہ رہا ہے کہ ہمیں نبی پاک نے ایسی شراب پی، ہمارے- معاذ اللہ. نہ آپ کا مربی کہہ رہا ہے، واٹر صاحب آپ کا مربی کہہ رہا ہے کہ نبی پاک شراب پیتے تھے معاذ اللہ. دیکھیں یہ موضوع پہ نا کل بات ہو چکی ہوئی ہے. وہ مربی جو ہے نا وہ کوئی احمدیت کا مالک نہیں لگا ہوا، وہ ایک پرسن ہے. ٹھیک ہے نا؟ کل ذاتی انفرادی فعل ہے. انفرادی فیل ہے. اور بات یہ ہے کہ کل ہماری اس وہ تو موضوع پہ کہتا ہے بات وہ ہوگی تو بھی. کہتا ہے کہ یہ فعل میرے مسیح موعود نے مجھے دیا ہے. آپ دیکھیں نا کل بات ہو گئی ہے. اگر ہم روز ایک ہی بات کرتے رہیں گے تو کہاں پہ پہنچیں گے؟ واٹر صاحب یہ بات عامر بھائی میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ واٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، واٹر صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اعظم سیفی ان کی جماعت کا آفیشیل معلم ہے بھائی. ہاں اس کی بات کی اہمیت ہے. واٹر صاحب آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے جماعت کے اندر. اور وہ اعظم سیفی جو ہے وہ جماعت کا آفیشیل مربی ہے، آفیشیل معلم ہے. سیلری لیتا ہے بھائی، پیسے لیتا ہے جماعت سے. وہ آپ پیسے چندہ لیتا ہے نا دیتے ہیں اور آپ کے چندوں سے وہ پیسے لیتا ہے، اپنی سیلری. ابو بکر. وہ پیسے لیتا ہے نا تو ہم پیسے دیتے ہیں. یہ والی بات یاد آپ رکھیں. اس کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ شاطمیت کرو. ہم پیسے دینے والوں میں ہیں، ہم ان سے بہت اوپر وہی ہیں. تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو یہ پیسے دیتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ پیسے پکڑو اور یہ شاطمیت کرو. یار بھونکو یہ اپنے بچوں والی مالک کو، باتیں نہ کرو. یہ بچوں والی اپنے باتیں مالک کو بھونکو. یہ آپ دیتے ہیں اس کو نہ. پیسے دے کے آپ اس کو بھونکنے کے لیے دیتے ہیں. دیکھو یار میری بات سنو. یہ بچوں والے الزام لگانے نا بس اب بند کر دو. اگر تم نے بڑے لیول پر جانا ہے، اگر ساری زندگی اسی طرح بروڈوں پہ ہی روز ایک دوسرے کے بیٹھ کے بال پٹنے ہیں نا تو پھر نہیں، میں یار 2-3 دن سے آپ کی بات سن رہا ہوں کہ وہ اکیلا ہے، وہ پرسن ہے، اس کی پرسنل چوائس ہے. بھائی وہ جماعت کا آفیشیل معلم ہے. آپ کون ہیں؟ کون ہے آپ جماعت میں کیا ہیں؟ آپ کیا عہدہ ہے آپ کا؟ میرا عہدہ کوئی بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو وہ تو عہدے دار ہے جماعت کا بھائی، آفیشیل معلم ہے وہ. اس کی بات ہم سنیں گے، اس کی بات مانیں گے، آپ کی بات میں تو مانیں گے. صرف آپ اس کی بات مان کے نا. آپ دیکھیں واٹر صاحب، اگر آپ کے اندر ہمت ہے نا، اگر ہمت ہے، آپ اپنی جماعت سے اس کے بارے میں پابندی لگوا کے دکھائیں، اس کو جماعت سے اخراج کروا کے دکھائیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، نہیں کروا سکتے آپ. پہلے تو واٹر صاحب خود کہیں نا، پہلے تو واٹر صاحب خود کہیں کہ اس نے غلط بات کی ہے، جو گستاخی کی ہے، پہلے خود کہیں نا. یہ کہہ نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ خود بھی نہیں کہیں گے، ابھی ڈرامہ لگایا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، واٹر صاحب ایک منٹ میری بات سنیے. مرزا قادیانی کا حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں. اس نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی ایسا کلمہ کہہ دے کہ جس سے خطا ہوتی ہو وہ حرامی ہے. آپ کہیں اعظم سیفی حرامی ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ ہمت ہے آپ کے اندر؟ بات سنو، تم چھوٹے سے بچوں کی طرح یہ کیوں کہہ دیتے ہو آپ نے میرے سے، ابو نے میرے سے لالی پاپ کا پرومس کیا، آپ نہیں لائے، آپ دوزخ میں چلے پھر جاؤ. آپ یہاں پہ آ کے بھائی جان یہ میٹھی میٹھی باتیں نہ کریں. آپ جو آپ کی حقیقت ہے، جو اصلیت ہے وہ بیان کریں. ابو بکر تمہارا ذہن ایک 5 سال کے بچے جتنا کیوں ہے؟ اتنے میٹھے بننے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی اصلیت کیا ہے ہم جانتے ہیں. آپ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ شاطمین انبیاء ہیں، پوری کی پوری جماعت. کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آپ میں سے جو شاطم انبیاء نہ ہو. ایک بھی بندہ نہیں ہے سمیت آپ کے مرزا صاحب. ہم تو بالکل بھی شاطم انبیاء نہیں ہیں. آپ تو 15 منٹ پہ فوراً مرزا صاحب کرو دفاع. یہ اعظم سیفی کا اور مرزا قادیانی نے جو لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے، کرو لعنت کرو ذرا دونوں پہ. یار آپ نے سارے اسلام کو لعنت کرنا ہی بنا لیا ہے.
भाई जो बात करता है ऐसी बात करता है उसमें लानत है, अल्लाह की आप लानत, मुझे ये अल्लाह बात के बताएं कि आप 5 वक्त तो आप पर नमाज फर्ज है ये कि लानत मिर्जा फर्ज है? साहब को भी कहो, उसने तो हरामी कहा है, अबू बकर भाई ने तो अकेला लानत कहा, मिर्जा साहब ने तो हरामी कहा है। यार अबू ये बकर बात भाई अभी मिर्जा को बहुत भी कहो छोटे ना। बच्चे हैं यार, अभी आप भी बड़े मिर्जा साहब, जूनियर मिर्जा लेवल साहब, वड़ गए भाई, छोटे बच्चे केड़े छोटे, मिर्जा साहब भी निक्के बच्चे सी जेड़े कहंदे हरामी ने, वो भी निक्के बच्चे ने, दूध पींदे यार सी। बच्चों की तरह तो आप लड़ते हो, जो बंदा आपकी ब्रॉड पे आता है आप ऐसे उसको पढ़ जाते हो कि पता नहीं आपको आज किसी ने मिर्चों तो की आप अच्छा, बात ये- इंसानों वाली करें, सीधी करें। अच्छा ज़िया भाई, लानत एक यार। चीज और है, एक चीज और है खत्म नबूवत के मुजाहिद बने ये हैं। हमें कह बात रहे हैं, करनी तो बात हमें कह रहे हैं लानत के बारे में कि लानत करने का ठेका उठाया हुआ है। मिर्जा साहब ने 6 सफ़े भर दिए हैं, उन्होंने 10,000 अच्छा बार यार, लिखा है, लानत पढ़ता तो लानत तू लानत है ना लानत रोज। लानत 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 और मिर्जा साहब ने कहा है लानत। तू रोज वो सफे पढ़ा कर, कहीं लिखा हुआ है उसके आगे पीछे के रोज पढ़ा कर तू। वो उन्होंने मिर्जा बंद साहब करा ने कहा दिया। 3 बार पढ़नी लाजमी है, वरना उसके ईमान में ही शुबा है। ये दिन में बड़ी 3 प्यारी बार। आपने बात कम की यार, अज कम रसूल साहब 3 अपने- बार जो नहीं पढ़ता उसके मान में शुबा, यानी 1 बार 1000 लानत लिखी, फिर 1000 बारी तर्जमा लिखिया लानता दा 2000 हो गईਆਂ, 3 बारी पढ़नी है लाजमी, यानी 6000 बारी लानता ना तुसी पाण गए हो ਤੁਹਾਡੇ मान ते शुबा। हाँ, मतलब देखिए ना, भाई, उसका ये ज़हनी बात तवाज़ुन- वाली प्यारी बात है साहब, तो मुझे भी ज़हनी जवाब तवाज़ुन भी देने आप देखें कि उसने कहा, उसने ये ज़हनी तवाज़ुन भी देखें कि उसने ये नहीं कहा कि भाई ये चलो 1 बार लानत कर दी, 2 बार कर दी, चलो बात खत्म। उसने कहा नहीं, ये जो कहनी है ना लानत 1000 बार वो अबू लिखनी बकर, भी है, और फिर पूरे मेरी सफ़े भरे बात उसने सुनो। लानत 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 लानत। ये क्या है भाई? नीचे तर्जमा भी लिखना है उसका, अरबी में लानत डाल के नीचे उर्दू में तर्जमा भी लानत लिखा हुआ है। टोटल 2000 हो गई। ਇਹ ਦਿਨ ਚ 3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ- ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ 3 ਵਾਰੀ ਪੜ ਕੇ कम अज कम तदाद है अमर भाई, जेड़ा कम अज कम 3 वारी नहीं पढ़दा ओदे ईमान दे मुतलक मिर्जा साहब कहंदे मैनू शक आ, यानी अपनी जिंदगी च अगर 6000 लानता ना पाणगे ते मिर्जा ही नहीं है। चलो जी, हो गई जी आपकी बात ਵਾਟਰ मुकम्मल। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ। आमिर साहब आप मैं एक तो पहले बस मेरा जवाब तो दे आखिरी देना मैं है। सिर्फ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੇਕ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਸਬੀਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੱਢੀ ਓ ਪਤਾ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਬੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, 1000 ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਲਾਨਤ 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 ਲਾਨਤ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਏ, 200 ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਮਸ਼ਾਬੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕ ਟਿਕ ਨਾਲ ਕਰੀ ਆਓ ਨਾ, ਟਿਕ 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 ਲਾਨਤ 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 ਲਾਨਤ। ਇਹ ਅਮਰ ਭਾਈ 6000 ਉਹ 2-3 ਸਫਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉੱਤੇ 5-7000 ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਵਾਟਰ ਰੋਜ਼ ਵੀ 2-2 ਤਸਬੀਹਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। चलो जी, हो गई बात मुकम्मल। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। बड़ी मेहरबानी सर। सर बात दरअसल ये है कि आपने तो एक दिन में 3-3 दफा पढ़ ली हैं, तो अबू बकर तो अब तक पूरा अहमदी हो चुका होगा। जो इनका अकीदा बन रहा है कि लानत कहने से ही अहमदी होते हैं, तो फिर अबू बकर तो पक्का अहमदी हो चुका हुआ है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ਉਹ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। मिर्जा साहब ने कहा जो मेरी किताब 3 बार कम से कम नहीं पढ़ता उसके ईमान में शुबा है। 2000 लानता उन्होंने 4 सफेद लिखियां ने, यार बाकी आप पूरी सारे रूहानी खजान मलफूजात आप मकतूबात सारे बीमार तो नहीं है ज़हनी तौर 7000 पे? ना निकल उन्होंने जो मेरा नाम बदल देना। अच्छा ज़िया भाई, वाटर सारे साहब बीमार ने तो नहीं बात बिल्कुल सही की है, वाटर साहब ने बात बिल्कुल सही की है। मैं पक्का अहमदी हो चुका हूँ, और जो बंदा अहमद नबी मिर्जा कादियानी को मानता है उसके ऊपर ये 6 सफ़े लानत 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 ਮੈਂ लानत। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ अच्छा आमिर साहब, एक मिनट मेरी बात सुने जरा। ਦੇਰ ਦਈਓ जरा इन भाई बंदों को वाटर चुप साहब की कराएं। बात करने दे भाई। आमिर साहब 1 मिनट ठहरे। होश हो जा सारे। अच्छा यार, आप इनके लीडर बने हुए हैं यार। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ, जब ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ आपके ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ, सामने- ਚੌਕੀਦਾਰ। हाँ, चौकीदार बने हुए हैं। जब आपके सामने ये बंदे इतनी सख्त बदजुबानी करते हैं, तो आप बम्बास्टिक साहब पे फिर किस बात का एतराज करते अभी हैं? किसने, अभी यहाँ पर मेरे होते हुए किसने कोई गलत बात की? अब ये आपके क्या बोल रहे हैं, ये ज़िया रसूल और अबू बकर लानत 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 क्या बोल रहे हैं? वो तो रिपीट कर रहे हैं मिर्जा साहब के अल्फाज जो किताब में लिखे हुए हैं। अच्छा, तो ये कुछ भी नहीं कर रहे, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। नहीं, वो बता रहे हैं कि मिर्जा आप तो कह रहे हैं ना अपना अबू बकर भाई को कि आप लानत डलवाते हैं, आप लॉलीपॉप वाले 5वीं क्लास के बच्चे हैं, आप ये कह रहे थे ना। तो उन्होंने कहा कि मिर्जा साहब ने तो 3 सफ़े लानत लानत के लिखे हुए हैं। इसका जवाब है आपके पास?
यार देखिए आमिर साहब, आप ना बहुत सारी ब्रॉडों पे बैन हो गए हुए हैं, हालांकि आपका इल्म बड़ा अच्छा है। चलो मैं आपकी बात की आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपके पास बड़े अच्छे हवाले होते हैं, आपने बड़ी वो क्या कहते हैं मेहनत से ये सारा क्यों काम बैन किया। हो गए? बैन है? क्यों कितने- कितने क्यों में बैन बैन हो है? गए? व्हाट्सएप लेकिन क्यों बैन हुए? हाँ, लेकिन बात दरअसल ये है कि आमिर साहब, आप फिर बच्चों के साथ मिलकर ऐसी घटिया हरकत पे उतर आते हैं कि आपको खुद नहीं पता रहता। आप अपने आमिर किए भाई। किराए पर खुद पानी फेर के बैठ जाते हो। आमिर भाई, लानत एक दुआ नहीं है, तो फिर मसला क्या है? ये देखें, ये अपनी आंखों के सामने देखें, ये क्या लिखा हुआ वाटर साहब। चलो यार आमिर साहब, अगर आपने कसम खा ली है ना कि आपने जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है, मेरे भाई देख तो लेना, मैंने कोई गलत बात है, कोई गाली लिखी हुई है ये यार आपके मिर्जा आपका साहब पता की? नहीं क्यों नहीं यार ज़हनी लेवल बढ़ रहा है आमिर साहब, आप बहुत ऊपर जा सकते हो। मतलब कितना आप पे जाना, पता नहीं कहाँ पे फिरते रहते हो आप। डॉक्टर साहब डोरना जुड़ा रोड अच्छा ये वाटर साहब तरस आ रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ये ज़हनी हालत देख ले, ये लानत कितनी बार लिखी हुई है। बाकी 6 सफ़ा भी दिखाऊं? यार आमिर, आपके ना मतलब ये है कि आपका सफा लेवल बदलो। अब ना डिफेंस वाला हो सफा गया है। बदलो, सफा लेकिन बदलो, आप सफे अभी बदल तक बदल के लॉकडाउन में बखाओ ना, भी इनको सफा तो ना रखो काम। अच्छा वाटर साहब, बात आप करें, वाटर साहब को बात करने दे भाई, चुप कर दे सारे भाई, गुस्सा उनको आ रहा है कि ये क्या यार गुस्सा मुझे ना आपकी बदकिस्मती पे आ रहा है आमिर साहब। यार, किस्मत हमारी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आप छोड़ें, बात है कि अच्छी है, आप बात करें, आप हुक्म करें, क्या कहना चाहते हैं? आप बात अच्छे दरअसल आदमी हैं। ये है कि मैं आप लोग आपको एक बता शख्सियत दूं, की तो बात करते हैं, एडवांस में आपको आज बता आपने दूं, अहमदियों को पकड़ा हुआ है, कल आप किसी और को पकड़ लेंगे, लेकिन नहीं। आप लोगों को ये नजर नहीं आता कि आप खुद कितने बड़े बड़े शातिम हैं सारे। बहुत गुस्से में, आप बहुत गुस्से में हैं, मेरी बात सुने। आप आपको बंदे, क्यों नहीं नजर आता कि आप कितने बड़े शातिम हैं? आप सारे, आपका ग्रुप अभी आपके, आप ब्रेक लेकर गए थे, यहाँ पे एक बंदा आया ट्रू मुस्लिम, ये आपके सारे बंदे जो यहाँ यूसफी, एक इब्राहिम, ऐसे गंदे तरीके से उससे गुफ्तगू कर रहे थे। यार आप लोगों को जरा मतलब मैं एहसास जब आया हूँ तो वो गंदी गालियां दे रहा था, वो आपका हमायती है, आपका ही कोई साथी है, वो गंदी गालियां इनको दे रहा था जब मैं आया हूँ। चलो मैंने यार इनको आमिर रोका। साहब, अगर आप हमें कहते हो कि ना आया करो, तो यकीन माने हम हुसैनी साहब आपसे बहुत बेहतर आदमी है। ओहो, लेकिन बात आपको ये है हो कि क्या उनकी गया ब्रॉड आज? पे एक बंदे ने ना गड़बड़ की, तो मैंने चंद दिन के लिए हमसे उसका बाइकआउट कर दिया। सभी बहुत बेहतर है। अच्छा वाटर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मोहतरम, आप बात तो करें ना, नाराज क्यों हो रहे हैं? किस बात पे मैं इतना गुस्सा नाराज चढ़ा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा आमिर साहब, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग शातमियत की जड़ डालते हो, फिर आपको जरा सा कोई कुछ कहता है तो आप बच्चों की तरह ओ ये कह दिया, ओ वो कह दिया, ओ फलाना कह दिया, मिर्जा कादियानी ने सिखाया, ओ मरज़ियत की तालीम निकल रही है, तज़किरा बोल रहे हैं, ये वो कैसी यार बातें करते हो? कोई यार लेवल बनाओ यार अपना। अच्छा वाटर साहब सुने, आप अरे, ਆਮਰ ਭਾਈ, जी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਕੀ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਆਊਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يؤت أحد من الأنبياء فقلنا يا رسول الله ما هو قال نصرت بالرعب وأوتيت مفاتيح الأرض وسميت أحمدا وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم۔ ایک کلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وہ جدو کوئی بھی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یقین کرو انگریز جنہاں نو سمجھ نہیں آندی وہ بھی روندے ہوئے ویکھے، انہاں دی اکھاں چوں بھی آنسو آ جاندے نے اے کلام سن کے۔ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਕੀ ਹੈ؟ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੋਏ ਤੇ ਆਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ ਲਾਨਤ 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 लानत 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 लानत। दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए, उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गईं। जो हमारी फतह का कायल नहीं होगा, साफ समझा जाएगा उसे वल्दुल हराम बनने का शौक वाला हाल ज़्यादा नहीं। 1000 पेशगोइयों को नहीं देखता है, एक पेशगोई को लेकर कुत्ते की तरह आऊ आऊ करता है। तो ये नाजल होने वाला कलाम पढ़ो तो पट्टी पुट्टी गई, दोस्त रेतर की शीशी मुंह पेट फट गया, मुंह काले, बीमार बहुत ही चीखे मारता, वल्ला वल्ला सीधा होया औला। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਵਧਾਓ, ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਕਰੋ, ਲੈਵਲ ਅਪ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਬਜੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਕਰੋ ਆਪਣੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਘੜ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈਵਲ ਅਪ ਕਰੋ, ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰੋ।
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਫਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਖੁਦਾਈ ਕਲਾਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੈਵਲ ਅਪ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੰਨਾ ਆਪਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਸ਼ੁਦਾ ਕਲਾਮ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ ਪੱਟੀ ਪੱਟੀ ਕੇ ਦੋਸਤ ਰੇਤਰ ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਖੀਆਂ ਨਾ ਦੋਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦੀ। ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਅਪ ਕਰੀਏ ਹਲੇ। ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਬਾਟਾ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਲਾਮ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਵਲ ਅਪ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਵਲ ਅਪ करिए? भाई हमारे चलो यार, मगरिब का टाइम होने लगा है। मैं बहुत प्यारे प्यारे मजमून खोले आपके साथियों ने, माशाल्लाह बड़ा अच्छा खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं। अल्लाह मियाँ इसी तरह ही तरक्कियां देते जाए इंशाल्लाह। गंद की गहराइयों में जा जाके आपका इंजाम होना है डॉक्टर सारों साहब कुछ बात सुन के जाएं, शायद कि तेरे दिल की ना ना ना, अब मैंने बात क्या सुननी है, मैं आया हूँ बकवास ही सुन रहा हूँ आप लोगों की। नहीं आप बात सुन तो के आपके जाएं। नबी का कलाम तो इतना अच्छा है कि अंग्रेज रो पड़ते हैं, सुने ना, तो आपका कलाम क्यों इतना गंदा मैं है? आपसे ये हर वक्त मुंह से गंद ही निकलता है यार आप लोगों के। और यार बड़े ही घटिया लोग हो, यकीन मानो कि तुम्हारा इतना साथ देने और तुम गंदी नाली के कीड़े हो। अच्छा सारे चुप गंदी कर दो नाली भाई, में पैदा सारे हुए चुप हो, कर गंदी दो, नाली में फंस जाना है तुमने। सारे चुप कर दो, सारे चुप कर दो। सरकार दो आलम आमर साहब फकीर सरवर गंदी साहब नाली एक के मिनट कीड़े रुक आपने जाओ, कटे। सरवर साहब रुक जाए। वो कायनात का बदतरीन स्याह तरीन हसीस अकबर है, हबीस अकबर है, जिसने सैयदुल अंबिया खातमुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ एक गलीज गंदी चीज की निस्बत की है। सारी कायनात जो है भाई हमने तो आपकी तरफ की है, आप तो सारे गंदी नाली के कीड़े हैं भाई। आप जो सुने, मैं कुरान से बात करता हूँ, सुन मेरी बात। अल्लाह कुरान पाक में रोड इरशाद पर फरमाता कुरान है, का तेरे से क्या काम यार, तुम तो नपाक लोग हो, तुम्हारी जुबान नपाक, तुम्हारे ज़हन नपाक, गंदी नाली के तुम कीड़े हो सारे यार। कौन कुरान से तुम्हारे से बात करे? अल्लाह और भाई कुरान तुम्हारे फरमाता है इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है और इज्जत मोमिनीन के लिए है। नाली के कीड़ों के लिए कुरान है ही नहीं। वलाकिन ला यालमून, लेकिन मुनाफिक के समझ में ये बात नहीं आ सकती। जो आदमी गंदी नाली के कीड़े की समझ में ये बात आ ही नहीं इज्जत सकती। पर हमला करे वो मुनाफिक है, वो जिंदीक है और वो तुम गंदी क़यामत नाली के दिन कीड़े हो, जहन्नम वहीं से मरोगे। निचले दर्जे में जाएगा। ये फैसला रब के कुरान का है। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जो मुनाफिक है वो जहन्नम के निचले दर्जे के अंदर गिरेगा। अब बता, ये बात मैंने अपनी तरफ से की है या मैंने मुस्तफा तुम्हारे लिए ये बात, पे तुम गंदी नाज़िल नाली होने के- वाले कुरान की तरफ से की है। तेरे अंदर अगर ईमान की एक जर्रा भी है, बता तेरे लिए भाई, सरकार ये दो तेरे आलम लिए है। सल्लल्लाहु अलैहि तेरे लिए वसल्लम को लिखा हुआ है इसमें। गलत और हमें तो तूने निकाल दिया, ये तेरे लिए लिखा हुआ इस्तेमाल किया या है। नहीं? गंदी नाली के कीड़े उसने हल्का लफ्ज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया या नहीं किया? उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इजात पहुंचाई या नहीं पहुंचाई? उसने और भाई मैं तो तुझे कह रहा हूँ, तुम गंदी नाली के कीड़े हो, तुम्हारा कुरान शीश से क्या काम? आप जैसे लाखों नहीं करोड़ों अगर मर्जी एक तरफ आ जाए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे लगी हुई एक जर्रे के गर्दे राह के बराबर नहीं हो सकते। तुम ये ना समझो कि हम जो है बेबस हैं, एक दूसरे से दूर बैठे हैं। अगर सामने होते तब भी यही बात मैं कहता, अगर हम तख्तादार पे होते हम तब भी यही बात कहते कि अल्लाह ने सारी इज्जतें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रखी हैं। सारा अल्लाह ने मकबादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। तुम्हारे पास जवाब नहीं है, मुझे जितनी मर्जी गालियां दे, मुझे दुख नहीं है। मुसलमान को दुख खुदा की कसम उस वक्त होता है जब तुम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सातमियत करते हो। आमर भाई भी और डॉक्टर डू भी और डॉक्टर आमर भाई भी, डॉक्टर ब्रदर अबू बकर साहब और मेरे ब्रदर दीगर जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी ये कहते हैं कि खुदारा आप लोग बाज आ जाएं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सातमियत ना किया करें। आप कहें, आपकी जमात कहे कि उसने कुफर कहा है, फिर इससे आगे हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों की रगों के अंदर जो है वो तो यार ये कौन का पागल खून ले आई है। हुई यार? इस कौन वजह सा से पागल आप ले लोग आई ये हुई बात है? कभी नहीं कहेंगे। मेरी पसीन गोई है, याद रखना। आपकी रगों के अंदर जो गलादत कौन है भाई? जरासीम मिर्जा कर रहा है, केड़ा पागल है यार? इस वजह से कौन आप कभी पागल भी है? अभी सैफी को बड़ा जो है, वो आप कभी भी बुरा नहीं कहेंगे। एक तरफ सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम है, एक तरफ सैफी की गंदी जुबान है। अगर हुजूर का कलमा पढ़ा है तो क्या इसने गलत कहा है? मैं तुझे कहता हूँ, आज कह, कल कह,
अपनी ब्राड के ऊपर कह देना, ताकि हम ये तो कहें कि कुछ मरज़ई ऐसे भी हैं जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, वो कादियानी को बाद में रखते हैं, वो मरबियों को बाद में रखते हैं, लेकिन ये बात तुम कभी भी नहीं कर सकते। मैं आखिरी बात कह के अपनी सबसे बड़ा खत्म झूठ करता है। हूँ। ये सबसे बड़ा झूठ है। इन्नल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, और बेशक वो लोग जो अल्लाह को और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं, इज़ा देते हैं, दुनिया और आखिरत में उनके लिए लानत है। आपसे ये आपके दिल के ऊपर मेरा ये सवाल है कि नबी फिर पाक तूने अपने बारे में आप फैसला कर लिया ना, अल्लाह ताला ने भी कर दिया तेरे बारे में फैसला। आप चल लोगों ने शाबाश, कही और चल तुझे बातों में तेरा वकालत इंजाम। की। क्या मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे अतहर को तकलीफ ना हुई होगी जब तुमने इस तरह के हल्के लफ्ज सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इस्तेमाल किए होंगे? मैं आप पे ये कर्ज छोड़ता हूँ, अपनी जमात से बात करके फिर आके बात करना। और हमारे लेवल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थर्ड क्लास आदमी है ये? आला है। लेवल तो उसका गिरता है जो रसूलुल्लाह से दूर हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह से निस्बत करने वालों के लेवल आप चेक नहीं कर सकते। ये सारे वो मुसलमान हैं जो देर रात ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ? ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈ? ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਲੈਵਲ ਹੈ? आप मुझे जितना मर्जी कहें, जो मर्जी कहें, मुझे इस बात की परवाह नहीं। बस मेरी मगरिब की नमाज का टाइम हो गया है। अगर मजीद खरखरा फरवाना हो तो मगरिब के बाद फिर ये फकीर हाजिर हो जाएगा, वरना ये डॉक्टर मौजूद पड़ेगा। चलो आमिर साहब, आज के लिए इतनी डोज बहुत है। थैंक यू। बड़े यार, वैसे आपने ना नीच बंदे साथ रखे हुए हैं, नीच है ये पूरे, बहुत साहब, नीच दिल है। पे हाथ इनको कभी रखे, नहीं- दिल पे हाथ कभी रखे बोले, फैज नहीं उनमें कौन पहुंचना सी नीचों से बात किसी की है? को, नीचों से फैज नहीं किसी को पहुंचना। ये सबसे बड़ा साहब, ये सबसे बड़ा झूठ है कि अच्छा आमिर भाई हैं, माइक खोले। फैज ना भाई किसी को खामोश हो पहुंचा जाओ। भाई। खामोश हो जाए सारे, म्यूट कर लें। वाटर साहब को बात करने दें। वाटर साहब, मैं आपको वैसे सही बात करूं, दिल की बात करूं, कि आप जो बात पहले कर रहे थे ना कि ये मरबी तो इसको तो हम तनख्वाह देते हैं, ये भी आप गलत कर रहे थे। आपसे तो वो छीन कर घसीट कर आपको वो आपसे चंदा निकलवाते हैं, सिरिंज लगा के खून निकालते हैं आपका। लेकिन आप बंदे बुरे नहीं हैं जाती तौर पर। मैं आपका जो मिजाज मैंने इतने अरसे से देखा है ना, आप अच्छे आदमी, लेकिन एक बुरे ग्रोह में हैं आप। ये लोग अच्छे नहीं है। देखिए कितनी तौहीन यार, क्यों रोज ये कभी राजपाल की किताब खोल के पढ़ना शुरू कर देते हैं, कभी नबी पाक को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। मतलब क्यों ये इल्जामात इस तरह के लेते हैं, इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? ये क्या मिर्जा साहब की तालीम है? तो छोड़ दें इस तालीम को। अगर आपको नबी पाक से कोई कल को उम्मीद है कि भाई आपने उनको नबी मानना है या माना है, कल क़यामत के दिन उनकी शफात करवाना उनसे शफात करवाना चाहते हैं, तो छोड़ दें इस ग्रोह को। ये सारा काफिर ग्रोह है, बदबख्त ग्रोह है, शातिम रसूल है। देखें रोज कितनी कितनी गंदी शिकायतें इनके आ रही। इनसे लेना क्या आपने? पैसे दे के आप ये गंद खरीद रहे हैं। अल्लाह से तौबा करें। इस्लाम कोई मोल नहीं बिकता, इस्लाम फ्री दीन है। आप कलमा पढ़ें और इस पे मतलब 4 अरब भेजें इस सारे ग्रोह पे, और कहें कि भाई मेरे लिए अल्लाह के नबी का छोड़ा हुआ वो कुरान काफी है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान काफी है। जो छोड़कर आप गए थे और आपने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर कहा था ना, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह। 2 चीजें मैं तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है, एक नबी की सुन्नत है। इनको पकड़े रखो, कभी गुमराह नहीं होगी। भाई ये काफी है। जान छुड़ाएं इस झूठे ग्रोह से, खामखा अच्छे भले आदमी हो के। अब ये जिस फ्रीक्वेंसी से आप बात करें, आप नॉर्मल इस तरह बात नहीं करते, लेकिन आज आप हाइपर हुए हैं। समझ आ रही है कि आपको पता चल रहा है कि मैं मतलब ये रोज की जिल्लत कभी यार मुझे ना आमिर साहब आपकी बात समझ नहीं आती यार। मतलब ये है कि पता नहीं आप हमें समझ के क्या बैठे हुए हो। मुझे तो आज तक समझ नहीं आई कि खत्म नबूवत का इतना काम करके आपने मतलब हमें समझा हुआ क्या है। शातिम रसूल। देखो यार, मतलब हद गुजर गई ना। मैं आप लोगों के साथ कैसे, आप लोगों के साथ मैं तो बैठना पसंद नहीं करता आपके साथ। देखिए ये गुस्से, ये मतलब आपकी इतने टोन सख्त बता रही है। गालीबाज, इतनी गंदी सोच रखने वाले, कौन सी इतने मैंने- बदजन। आप कौन सी मुझे मैंने बताएं आपको कि गाली आप दी है? मुझे हदीस से या सुन्नत से हवाला दे दें कि जो आप जितना बदतमीजाना आप लोगों का रवैया होता है, कभी किसी साहबी ने किसी और गैर मुस्लिम के साथ भी ऐसा कभी किया हो और उसको शाबाश मिली हो। और यार सारों से बड़े इखलाक के म्यार तो रसूल अल्लाह के हैं कायनात में, और आप इतने बद इखलाक लोग हैं यार।
वो क्या गया आपके आपको? साथ हम बैठेंगे यार, अफसोस हम मर जाएंगे, आपके साथ कभी ना बैठेंगे। नहीं वो तो मैं और पता है। आप रसूल अल्लाह के वारिस हैं यार, कहाँ से आप रसूल अल्लाह के वारिस बेशक, हैं? बेशक, आपने तो बेशक। रसूल अल्लाह की अलिफ भी नहीं समझी अभी मुस्लिम तक। उम्मा, मुस्लिम उम्मा ही नबी अलैहिस्सलाम की वारिस, इसमें कोई दो राय तो नहीं। मुस्लिम उम्मा तो हम हैं, आप कहाँ से मुस्लिम उम्मा हो गए? आप मुस्लिम उम्मा आपका हैं, तो आप तो हैं ही आप इतने मुस्लिम उम्मा बद-इखलाक। हैं। इखलाक तो वुजू होता है ईमान में मतलब दाखिल होने का। ये मुस्लिम उम्मा है जो कहती नबी पाक ने शराब पी माज़अल्लाह, ये मुस्लिम उम्मा है। बड़े अफसोस की बात है यार, मतलब इतने बदतमीज लोग ये मुसलमान होते हैं, इतने क्या गाली आपको बोला, आपको इतने क्या बोल झूठे। दिया बताएं तो सही, आपको क्या बोला किसी ने? आप अपनी रिकॉर्डिंग सुन लें यार, या तो आप अंधे गूंगे और बहरे हैं कुरान शरीफ के वाटर मुताबिक। साहब यहाँ पर आपको मेरे अपनी होते बात हुए ही तो नहीं कोई समझ बात आती। ऐसी नहीं हुई, मेरे होते यार हुए तो कोई इतने बात बद इखलाक बंदे। चलो अल्लाह मियां जितनी बद इखलाकियां आपको आप किसी लोगों ने से गाली करते दी हैं, है तो आपके मुझे सामने बताएं, लाएं। अभी मैं उसकी तरफ से माजरत करूंगा, किसी ने गाली दी बताएं मुझे। मैं आपको क्या बताऊं यार, मैं किसने आप गाली लोगों को दी? समझाने के लिए आया, मैंने कहा यार थोड़ी तमीज कर लो। नहीं आपने फुल समझाना तो था ना, बदतमीज अगर मेरे आपको ऊपर किसी ने छोड़ गाली दी है तो बताएं तो सही ना, किसने गाली आपको दी? मिर्जा साहब की तालीम, कादियानियों की ये तालीम, मिर्जा साहब ने तो वो ये गाली है? लिखा। वो और यार गाली है? मिर्जा साहब ने तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हैं। वो कहाँ भाई वो मिर्जा साहब की तालीम गाली है आपके लिए, वो ना पेश बड़े करें आपके अफसोस सामने। की बात है यार, आप लोगों ने तो सारे वही वाले जुमले चुन लिए हैं ना जो आपको फायदा दे रहे हैं, और आपकी सोच क्या है यानी मुझे ऐसे पता जुमले नहीं। हैं, बद हैं ऐसे इखलाक, जुमले। हमारे फायदे बदतमीज। वाले हैं वहां पर लिखे हुए। यानी है चलो जुमले यार, ऐसे। मैं आपकी कोई मिन्नतें थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो यार मैं आपको अच्छा आदमी समझता हूँ, ये तो सारे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं भी आपको ये तो अच्छा आदमी भीड़ मार समझता जाए, हूँ, मुझे लेकिन कोई आप बुरे परवाह नहीं ग्रोह है, में किसी हैं माने। वाटर हाँ। साहब, आप अच्छे आप एक आदमी हैं। बेहतर आदमी हैं, मैं आपके लिए चाहता हूँ कि आप एक मतलब कि मुझे आपके से थोड़ा सा है कि आपके पास इल्म है लेकिन आपके पास ठहराव नहीं है। आपने अपने साथियों में इंतहाई बद इखलाक बंदे चुने हैं। क्या आप कह सकते हैं कि हजरत उमर इस्लाम लाने से पहले भी बद इखलाक थे? हजरत अबू बकर इस्लाम लाने से भी पहले एक साहबी भी बद इखलाक था। यार यहाँ इतने पर बद किसने इखलाक बद इखलाकी बंदे की यार। है? यहाँ पर किसने आप बद तो इखलाकी? मुसलमान हुए ही नहीं यार, आप भाई सारे। मिर्जा साहब की तहरीरें पक्के पढ़ के काफिर। दिखाई हैं। भाई मैं तो आपको आमिर कहता हूँ भाई, कि आप मुसलमान हुए ही आमिर नहीं। भाई सिर्फ 30 सेकंड की मैंने बात करनी है, और वो बात ये करनी है, वाटर साहब कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने अच्छी चलो बातें यार ये लिखी हुई 30 हैं। सेकंड क्या, ये आप 30 मिनट ले, 30 मिनट। अच्छा, मिर्जा 30 साहब ने मिनट जो ले तू, ये अच्छी बातें लिखी हुई है ना, इसके ऊपर भी मेरा चैलेंज है कि 3 सफ़े सिर्फ मिर्जा साहब के दिखा दें कि उसमें 3 सफ़ों के अंदर कुफर ना किया हो। 3 सफ़े सिर्फ किसी भी किताब के। पता नहीं कौन सी अच्छी बातें की हुई हैं मिर्जा साहब ने। चलो ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। भाई आपको की बरोड के जवाब आते हैं वो बेचारा ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਭਾਈਆ, ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ गाली ਭਾਈਆ क्यों ਆ ਗਿਆ। देते हो? ਇਹ ਜਿਹੜਾ गाली के सवाल आपको आता ही कुछ ਇਹ नहीं, ਵਾਟਰ गाली देते ਇਹ हो, ਵਾਟਰ ਦਾ झूठ ਵੱਡਾ बोलते ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। हो। नहीं लाहौर नहीं, आप गाली बाज हो, लाहौर वाला भाई। मर्जी मसलक से होती ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ किसी ਕੇ अहमदी ने गाल नहीं दी आज तक। वाटर हैं अहमदी ने मुझे आज तक किसी ने गाल नहीं दी। तो आपको तो मिर्जा का देनी ने गालियां दी हैं। उसने कहा कि तुम रंडी के बच्चे हो, मतलब वो बदकार ख्वाहिश औरत के बच्चे हो। नहीं ये तो आप देखे फिर गाली पे उतर आए हो। मैं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब कहते हैं कि अच्छा, जो वो मुझे जो नहीं नहीं मानता, सुन तो लेना। अच्छा बात सुने ना, आप मिर्जा साहब को नबी मानते हैं? आपने मुझे कहा ना कि मुझे आप मिर्जा साहब को नबी मानते हैं? मुझे आपने बताओ। मुझे कहा कि मिर्जा साहब ने मुझे कहा रंडी के बच्चे हो। हाँ ठीक मैं है, बताता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे कहा। मुझे जवाब आप देने दो ना। हाँ पहले ये बताओ ना, आप मिर्जा साहब को नबी मानते हैं या मुफ्ती वो मानते हैं? भट्ट साहब नहीं है, वो कह रहा था आप पाकिस्तान में लोंडेबाजी करते थे, भागकर इधर आ गए हो इटली में। वो आपके बारे में ये कहता था। मुर्जद एक कितु कर गया जी रहा है। लाहौर वाला भाईया जो था। अपनी बात देखो, आगे से हंस रहे हो। ਵੱਡਾ वो कह रहा था, जो भैन भट्ट साहब कह रहा था, भट्ट साहब। मैं गाली बात नहीं। ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। अच्छा वाटर साहब एक बात तो बताएं जरा। सॉरी यार, वाटर नहीं, ब्रेड करना था। ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ। नहीं नहीं, ब्रेड, ये ब्रेड आ गई ना, वाटर चला गया, ब्रेड आ गई। ब्रेड साहब माइक ओपन है आपका। आप मिर्जा साहब को मुफ्ती मानते हैं कि नबी मानते हैं? चलो बताओ। किससे पूछ रहे हो? आपसे पूछ रहा हूँ। मैं जवाब दे दूं फिर सुन सकोगे? हाँ इतना ही पूछा है, दो ही बातें। वो कहते हैं या मैं मुफ्ती हूँ या मैं नबी हूँ। अच्छा फिर ये ना कहना कि जी आप पहले क्या कह रहे थे, मेरा जवाब गौर से सुनना। मैं मिर्जा साहब- नहीं, मेरी बात सुन, आपकी तकरीर नहीं सुननी।
दो लफ्ज आपको बताए हैं, ये खुद मिर्जा साहब ने बताए हैं। उन्होंने कहा है कि दो लफ्जों में से एक का ही जवाब दूंगा ना। हाँ दे दो दे दो, सुनने तो दो ना, सुनो तो एक सही। लफ्ज बोलना है बोल दो। नहीं, एक लफ्ज बोलने से पहले दो बातें तो करने दो ना, ना ताकि ना 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 एक्सप्लेन हो जाए। एक लफ्ज बोलना है। उन्होंने कहा ऐसे खुद, तो नहीं ना। अब सुनो, मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या आप भी और चोरी सुनो करते हो, हाँ या ना? बात तो सुने ना, ये मैंने नहीं कहा कि आप भी चोरी करते हैं कि नहीं। ये मिर्जा साहब ने फरमाया है कि या मैं नबी हूं या मैं मुफ्ती हूं। आप उनको क्या मानते हैं? तो वही जवाब दे रहा हूँ, अगर ना दिया तो फिर कहना ना। तो एक लफ्ज है, दोनों में से कह दो ये वाला मेरा है। बात वही जवाब भी दूंगा, आप सुनना नहीं पा रहे ना। आप चाहते हैं आप सवाल भी अपनी मर्जी का करें और हम जवाब भी आपके मर्जी अल्लाह चलो मरो मरो। करो। मिर्जा साहब को मैं वही मानता हूँ जो बचपन से मानता आ रहा हूँ, आज तक वही मानता हूँ और आंदा भी वही मानूंगा। क्या अब है वो? जो मैं आपको जवाब देने लगा हूँ, आपने ये नहीं कहना जी आप तो कह रहे थे मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, अब क्या कह रहे हो। मेरा जवाब गौर से सुनना और इसको रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है? तो बाद में आपको काम आएगा। और इसमें एक नुक्ता भी है, वो आपने नुक्ता पकना है तो फिर मेरी बात मानी। अब मैं आपको बताता हूँ, आपका टाइम खत्म होने वाला है, आधा टाइम गुजर गया। मैं मिर्जा साहब को नबी मानता हूँ। हैं? ਇਹ ਸੂਬਾ ਦਾ ਤੇ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਇੰਜ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। नहीं है, निकला है ना मरजई अंदरों। मिर्जा का देने को नबी मानते हो? हाँ मेरी रिकॉर्डिंग सुनी है आपने? मैं मिर्जा, मैं दोबारा बोल देता हूँ, गौर से सुनना। निकला है ना मरजई, ये ड्रामे नुक्ता निकलेगा, आप समझ पाएंगे फिर। गौर बाद से नुक्ता सुनना। मैं निकला है दोबारा और कहता हूँ, बाद निकला है मैं दोबारा नुक्ता। कहता हूँ, दोबारा कहता हूँ, मैं मिर्जा निकला है। साहब को नबी मानता हूँ। हाँ निकला है नुक्ता, नुक्ता की सारा कुछ निकला है बाहर। आमर साहब तो कोई समझ आई है? आज तो बाद ना इन्हों कोई जो आपने बोला है वो तो यही है कि आपने बताया कि आप मिर्जा साहब को नबी मानते हैं। हाँ जी। तो इसका ये क्या जब मतलब है? आप जब आप बोलते हो कि मैं मिर्जा साहब को, तो दिल में हल्का सा कहते नहीं देते झूठा, आगे ऊंची आवाज से कहते हो नबी मानता हूँ। अच्छा, ये अब आपने नुक्ता जो है ना, नहीं मतलब रुक जाते हो ना बीच में, जब कहते हो मैं मिर्जा साहब को, फिर दिल में कोई लफ्ज बोलते हो, फिर ऊंची आवाज से कहते हो नबी मानता हूँ। इसका क्या मतलब होता है? वो जो आहिस्ता सा बोलते हो वो क्या है? वो चलो मैं बताता हूँ आपको। हाँ मैं मिर्जा साहब को झूठा नबी मानता हूँ। देखिया जे मैं तो आगे ये दिल च झूठा पे आंदा जे, मैं ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। रंडी ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ। ਇਹ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਹੋ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ। नहीं, मैं तो मिर्जा साहब ने नबी नहीं मानता ना, मैंने उन्होंने क्यों किया? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਹੋ। तो तुसी भी नहीं मानते फिर से। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। नहीं, मैं मिर्जा साहब ਨੂੰ ਨਬੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਲਿਖਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਲਿਖਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਜਾਣੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਓ। ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ। ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? मैं मिर्जा क्या नाम है उनका पूरा? गुलाम अहमद कादियानी। अहमद कादियानी साहब को नबी मानता हूँ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਦਿਲ 'ਚ। पूरा ना ध्यान होना, वो मिर्जा तो कोई भी हो सकता, मिर्जा गालिब भी हो सकते हैं। ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਬੋਲੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। मैं मिर्जा गुलाम ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੋ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਵਾਟਰ ਸਾਕੀ ਨਾ ਬ੍ਰੈਡ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੇ ਮਰੋ, ਕਿਰੇ ਫਾਇਲ ਲੱਗੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ। ਵੇਖੋ 100 ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਵਿਆਤ। अच्छा, सीधी गल मैं करो। कह रहा, 100 बंदा है कि 9 बंदे ने? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को नबी नहीं मानता। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਚੇ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੋ। मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को नबी मानता हूँ, लेकिन एक झूठा नबी मानता हूँ। आखो जी वाटर साहब सुभान अल्लाह, थले लिखो जी सुभान अल्लाह।
और नहीं हो रही ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਲਿਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਮੰਨਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਮੰਨਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਹੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ? हाँ, रंडी का बच्चा, वो कंजरी का बेटा है, यानी कि कंजरी उसकी का। माँ एक हाँ फैश औरत, एक गलत औरत थी। फैश औरत। हाँ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਇੱਥੇ? ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। नहीं, मिर्जा साहब के कहने से तो नहीं होता ना। मिर्जा साहब ने ये जो बात लिखी है, ये कैसे लिखी है, किस एंगल में लिखी है, क्या इन्होंने अपने बारे अब खुद मैं दसना है, मैं दसना अपने दिल उनका की ना, बात लिखी है, या उसने ये कहा कि मेरे बारे में किसी ने हाँ, ऐसे बोला था? मैं और बताता हूँ। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता हूँ, मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं बोला। नहीं 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 उन्होंने नहीं कहीं अपनी सफाई तो नहीं दी हुई। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ना आईना कमालत इस्लाम में ये बात लिखी हुई है, किताब है उनकी, आईना कमालत इस्लाम, रूहानी हुसैन की 5वीं जिल्द, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि सारे मुसलमान मेरी किताबों को मोहब्बत और तहसीन की निगाह से देखते हैं और इनसे फ़ायदा उठाते हैं, सवाए उनके जो ज़ुरियतुल बगाया है, यानी जो कंजरियों की औलाद है। तो ये मिर्जा जी को ऐसी बात लिखने की क्या ज़रूरत थी? एक तरफ इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, मैं इमाम मेहदी हूँ, मैं नबी हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हूँ, मसीह मऊद तो हूँ। दावा दलील तो नहीं ना होता, वो दावा ही करते हैं ना, दावा तो झूठा, आपने बता दिया कि दावा झूठा कर दावा। रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं मुझे मानो, तो दूसरी तरफ ये ऐसे तो अल्फाज भी नहीं लाते ना जो नबी होते हैं और जो इमाम मेहदी होंगे, या इस तरह के पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, डिसेंट लोग होते हैं, वो तो अपनी गुफ्तगू में गाली भी नहीं देते ना। ਇਹ ਗਾਲੀ ਵਾਸੀ ਬੜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਤਮ ਕਰਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡੀਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ? ਇਹ ਲਓ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੂਰੀ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ 10,000 पेशगोइयों नहीं वेंदे, एक पेशगोई को लेकर कुत्ते की तरह औ औ करते हैं। ਇਹ ਵੇਖੋ गुफ्तगू ਜੀ, है। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ ਅਲਫਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਰਬੀ? जी, तिल का कोतबा यंजिरो इलैहा कुल्लु मुस्लिम बैनल महब्बा वल मवद्दा व यंतफा मिन मारिफहा व यकबलनी व यस्दिको दावती इल्ला ज़ुरियतुल बकाया अल्लज़ीना ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम फहम ला यकबलून। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਨੇ। एक इन्होंने कह रहे काफरा नु कह रहे नहीं या ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਅਰਬੀ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲੋ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਵੱਦਤ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਰਫ ਤੋਂ ਸਵਾਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਲਾ ਸਵਾਏ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਦੇ, ਸਵਾਏ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਨੇ ਨਾ ਆਬਦਾਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ੀਨਾ ਖਤਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੀ अगर ज़ुरियतुल बगाया की जगह लिखते ने ना कि कुछ बेवकूफ लोग ने ਜਿਹੜੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮਸੂਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੋਲੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿਲ 'ਚ ਝੂਠਾ ਪਿਆ ਦੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਬੀ ਪਿਆਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਝੂਠਾ ਪਿਆ ਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਾਰਫ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਝੂਠਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀਆਨ ਹਜ਼ਰਾਤ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੀਆ ਤੋਂ ਭਗਾਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਫੈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੀਆ ਤੋਂ ਭਗਾਇਆ ਹੋ। ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਗਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਗਾਇਆ ਆਪੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਾਸ਼ਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਗਾਇਆ। रक्सत करकस बागिया फी मजालिस, बदकार औरत की तरह तूने रक्स किया। है वेख्या जी, नजर आ रहा जी? बदकार औरत हो ਇਹ ਬਗੀਆ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੂ ਲਿਖਿਆ ਤਰਜਮਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਤਲਤ ਲਸਾਨ कल बगाया, थल्ले की लिखी है तूने बदकार औरतों की तरह अपनी जुबान दरा। मतलब उन्होंने बगाया का आप ही तर्जमा किया है कि बगाया का मतलब होता है बदकार औरत। इतने उन्होंने लिखे है कि इल्ला जुरीयतुल बगाया, सवाए जुरीयतुल बगाया दे सारे मेरिया किताबां नूं मुहब्बत और मुवद्दत की नज़र नाल वेखदे ने, सवाए किन्हां दे? आबद साहब दे। अच्छा, ये मिर्जा साहब ने जड़ियां गाली वगैरह अपनी किताबों में तहरीर फरमाइया ने, कारण की हो सकता है? क्योंकि वो इतने मतलब बड़े सन, पढ़े लिखे सन, किताबां भी लिखियां, उन्हां दे ज़हन विच गाली वगैरह तहरीर फरमाई है गालां मतलब लिख रहा ते ये ते आने वाले लोग पढ़नगे ते ये ते मेरी शख्सियत के खिलाफ जाणगियां। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? अच्छा आमर भाई, अगर है किसी मुरब्बी को मतलब पूछन ना तो उन्हें आखना वे कि नहीं बगाया का मतलब जो है ना वो बदकार औरतां नहीं, वो कोई और मानी दसणगे। ते जो कोई और मानी दसन ना तो फिर उन्होंने सिर्फ इन्ना ही कहना है कि फिर मिर्जा साहब जिहड़े ने वो भी साडी नज़र ज़ुरियतुल बगाया ने, ते फिर वेखा जे तुहानू किवें खोल दे मुरब्बी। हाँ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਸੈਫੀ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। आप ऊपर तशरीफ ले आए, आप ऊपर हाजिर हो, ਉੱਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਾਤੀ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ। आमर भाई, एक जगह ते मिर्जा साहब ने आबद साहब नू हरामजादा भी लिखे है। ओहो, वो फिलहाल है जो ना कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਾਮ अबू बकर ने यही लिखा, अबू बकर ने यही लिखा। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਆ। ओए मैं भी भेजी हां आबद साहब तुहाडे नाल ही हां। सियाल जंग वाले ने भी यही लिखा ना। वो आंदे जो मेरी फतह का कायल नहीं उसे हरामजादा बनने का शौक है। पप्पू मलिक ने भी यही लिखे ना। तो जी मैं काल पा दी। बंदे का शौक क्या हुआ? मतलब बड़ी साथ वाला लिखी। ये तो जो हकीकत में एक में अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो तो ये तो वो भी सुनना नहीं पसंद। लो गल कर लो, सैफी साहब तशरीफ लाए ने, मैं म्यूट करना, तुम गल कर लो। अच्छा सैफी साहब, आपसे ये एक सवाल है छोटा सा मेरा, कि मिर्ज़ा साहब ने जो अपनी किताब में लिखा है कि जो मेरी किताबों से फ़ायदा नहीं उठाता वो ज़ुरियतुल बगाया है, यानी कि वो एक फाहिशा औरत का, बदकार औरत का बच्चा है, तो ये तो खुल्म खुला गाली है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि मिर्ज़ा साहब का ये बात लिखने का क्या मकसद था? ये तो एक तो पहली बात तो ये है कि मैं तो कुरान से हिदायत लूँगा इस बात के ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं कोई देखता हूँ कि कोई मुसलमान जो है वो कुरान को फॉलो नहीं करता या उससे हिदायत नहीं लेता, तो कुरान उसको क्या कहता है, ठीक है। तो भाई ये हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि हम कुरान और हदीस को देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है ऐसे लोगों के लिए जो मुनाफकत करते थे, या जो लोग हैं वो मुंह पे कहते थे कि हम ईमान ले आए हैं, पीछे जाके कहते थे कि नहीं हम तो ईमान नहीं लेकर आए। तो अल्लाह फरमाता है कि अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं लेकिन इनके दिलों में ईमान नहीं दाखिल हुआ, ठीक है। तो उधर से हम देख सकते हैं ना इन अल्फाज को। ये कुरान के अंदर भी मेरा ख्याल है अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जैसे खबीस औरतें, खबीस हाँ, मर्द। समझ आ गई, ठीक है, समझ आ गई आबद साहब आपको कि नहीं आई? वो कह रहे हैं अब ये बात तो उनसे तो बात कर रहे हैं आप साहब से। तो भाई इतनी बात कोई तकरीर तो नहीं करनी, 2 मिनट आपने बात कर ली है, समझ आ गई है, सुन तो लेना।
अब सुने तो सी ना, आपने 2 मिनट बात कर ली है, 100 बंदा नीचे बैठा हुआ है। बोला ही नहीं हूँ मैं। भाई मेरी बात सुने ना, इतनी बोरिंग तकरीर नहीं करनी, इतनी बात काफी है। आपने कहा कि सुने कुरान की बात, इतना काफी है कि आपने कहा कि जिस तरह मुसलमानों का कुरान है जो उसका मानने वाला नहीं है, जिस तरह वो ज़ुर्रियतुल बगाया, इसी तरह हमारा रूहानी खजाइन का नाम मानने वाला साहब मैंने ये बात की है यार। अच्छा सैफी साहब ये बताएं, जो आप कुरान को में क्या लिखा है कि जो नहीं मानेगा ईमान नहीं लाएगा, उसके बारे में क्या लिखा है कुरान में? बड़े बड़े सख्त लफ्ज लिखे हैं, काफी जगह पे लिखे हैं। ऐसा कोई एक मिसाल दीजिए। देखें, जो लोग मुसलमान होके भी ना, ठीक है, मुनाफिकत करते थे ना, कि मुनाफिक थे वो लोग, कहते थे हम मुसलमान हैं, ठीक है, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। अब मुझे लैपटॉप खोलना पड़ेगा, इस तरह मुझे नहीं, वो लफ्ज पूछने की बजाय ये पूछ लो ना अब्बास साहब कि ये कुरान के बराबर है रूहानी खजाइन? वो कुरान के बराबर नहीं, लेकिन कुरान हिदायत है ना। मतलब अगर रूहानी खजाइन को कोई नहीं मानता और कुरान को नहीं मानता, बराबर है, जुर्म बराबर है? कुरान तो अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब है ना, तो कुरान देखें, कुरान हिदायत है ना, स्टैंडर्ड तो कुरान है ना। मतलब जो अल्फाज कुरान ने अपने मुनकरों के बारे में कहे हैं कि मिर्जा साहब ने कुरान नहीं है, आपको रूहानी खजाइन कुरान की रोशनी में लिखी है। हम ये बराबर ही समझो, कुरान तो बराबर ही होंगे ना, समझो बराबर ही हो कहंदे ने जो मेरे ते कलाम नाज़िल हुंदा है, मैं इनू कुरान आ रही है ਇਹਦੇ ਤੇ मान ले आया वा कड्डा वाला। जब बात सुने ना, जब कोई चीज अल्लाह ये इनका कुरान ही है वाली। मैं सवाल पूछा था वो वही रह गया। मैंने सवाल बताया तो है कि सवाल लिखा है, जो बात देख के बात सुने हमें गाली के तौर पर लगती है ना, बहुत गंदी गाली लगती है। आसान अल्फाज में पूछ लेना आबद साहब, आप भी आसान अल्फाज में पूछ ले। तीन लोग बोलोगे यार, अब यार मैं नहीं, बस एक ही आप उनसे ये पूछ लें कि रूहानी खजाइन का मुनकर और कुरान का मुनकर दोनों का हुक्म एक ही है, बस। जी सैफी साहब, मैं देखें, बात सुने, जो बंदा भी हक सच को देख के सामने उसका मुनकर है ना, वो बागी है। बागी तो हो गया, मतलब बगावत कर रहा है। कुरान का हक सच है, वो पाक रसूल की अहादीस का हक सच है, पाक रसूल की सुन्नत का हक सच है, या मिर्जा साहब का हक सच है। अगर उसको देख के भी बंदा उसका मुनकर है ना, तो वो बागी है, वो बगाया है, उसकी जुरियत में बागी है कि बगाया कह लो, बागी कह लो। सैफी साहब, ये मिर्जा जी की अभी मैंने एक किताब पढ़ी, वो तो बगाया का तर्जमा कर रहे हैं, बदकार औरत। मिर्जा साहब का बदकार औरत कहाँ पे किया उन्होंने तर्जुमा? अभी इन्होंने मुझे दिखाया, मैंने खुद आंखों से पढ़ा है ना मेरे भाई। क्या पढ़ा है आपने? कर जाता अगर ना पढ़ा होता तो। नहीं, मैंने कहा क्या क्या पढ़ा है वहाँ पे आपने? मिर्जा जी ने लिखा कि जो लो जी दिखा देते हैं, दिखा दो जी, दिखा दो, चुप करो। बगाया है, फिर उन्होंने एक जगह बगाया भी लिखा है, मतलब दिखा देते हैं यार, दिखा देते हैं, दिखा देना यार, इसमें देखो जी, देखो जी, देखो जी, देखो ए लो जी, ये है रूहानी खजाइन की 14वीं जिल्द। हाँ जी। और सफ़ा नंबर है, क्या नंबर है सफ़े का? 232। ठीक हो गया जी? ठीक है। इसके ऊपर ये लफ्ज लिखा हो कल बगाया, ठीक है। इसका तर्जमा बदकार औरतें लिखा हो जी। हाँ, तो इसमें बदकार औरतों की औलाद, तो बदकार औरतों की तरह जुबान, ये आगे करें जरा, आगे की तरह अपनी जुबान, जैसे हाँ, वो तो इसका तर्जमा है ना, वो तो लिसान बदकार औरतों की तरह भाई बगाया। सुन ले सब, सुन ले, बगाया का मतलब है बदकार औरतें। बगाया का लिसान सुन तो लें यार, लिसान का मानी है जुबान, अच्छा, लेकिन बगाया का मानी बदकार औरतें हैं। बगाया का मानी बदकार औरतें हैं। हाँ हाँ। अच्छा, ये आगे देखिए, उसका क्या मतलब है? आगे ऊपर 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 किधर? वाह जी, जो आगे लिखा हुआ का हाथ भाई सुने। हाँ जी। अतलता लिसानक कल बगाया वकाहतन, इसका तर्जमा ये है तूने बदकार औरतों की तरह अपनी जुबान दराज की, ये है पूरा तर्जमा। ठीक है। तो इस लफ्ज का कल बगाया का उन्होंने तर्जमा खुद किया हुआ है बदकार औरतें। अच्छा। हाँ, तो जो यहाँ लिखा हुआ है ना मिर्जा साहब ने कि मेरी किताबों को सब लोग, तमाम मुसलमान मोहब्बत और मुवद्दत की नजर से कीजिएगा, उसको फोकस कीजिएगा जरा, मेरी नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये देखिए, तिल का कोतेबा यंज़िरु इलैहा कुल्लु मुस्लिम बैनल महब्बा वल मवद्दा व यनफा मिन मआरिफहा व यक़बलनी व यस्दिक। ओहो, दावती, और मेरी दावत की तस्दीक करते हैं। इल्ला ज़ुर्रियतुल बगाया, सवाए किसके? फोकस करके दिखाता हूँ, सवाए किसके?
सिवाय ज़ुर्रियतुल बगाया कि वो कहते हैं सारे मेरी किताबों को मोहब्बत और मवद्दत की नजर से इधर इसका तर्जमा कहाँ पे किया मिर्जा साहब ने? इसका तर्जमा तो किया, ये तो अरबी की इबारत है ना, इसका तो पूरी किताब मैं का वही तो तर्जमा कह है। रहा हूँ कि आप इसको उससे कैसे रिलेट कर रहे हो? क्या यहाँ पे मतलब? तर्जमा क्यों नहीं लिखा हुआ यहाँ पे? मतलब इधर भी तो होना ये चाहिए क्योंकि ये किताब अरबी लिखी तो अरबी में लिखी तो तर्जमा ना। मैंने करना आप था। इसका तर्जमा वैसे कैसे कर सकते हो? इसका तर्जमा है ही बदकार औरत है। कैसे हो सकता है ऐसे तर्जमा? मैं कुरान के आपको 100 लफ्ज दिखा दूंगा, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तर्जमा है उनका। भाई हाँ हाँ, एक एक लफ्ज के कई कई माने हो सकते हैं, लेकिन जब मिर्जा साहब ने खुद नहीं देखे, सुन तो लेना। आमिर साहब ज्यादती ना करें यार, ज्यादती ना करें यार, प्लीज यार। भाई सुन यहाँ पे तो लें। ज़ुर्रियतुल बगाया लिखा हुआ है यार। हाँ तो ज़ुर्रियतुल बगाया वही तो होता है इसमें ना। औरतों और ज़ुरिया मतलब औरतों का कहाँ पे आ गया यहाँ पे जिक्र यार? चलो जी, ज़ुर्रियत क्या होती है? ज़ुरियत जो नस्ल होती है, बागियों की नस्ल। बगाया की, वो बगाया की नस्ल, तो बागियों की नस्ल होगी ना। बागियों की नहीं, बगाया की नस्ल। यार हद हो गई है यार। बागी और होता है, बगाया और। बगाया का मानी बागी ले रहे हैं, ये मतलब है इसका? हाँ, मैं बिल्कुल बागी, इधर मैं बागी ले रहा हूँ। अच्छा भाई आमिर साहब, अगर बागी ले रहे हैं तो फिर तो आप मेरे ख्याल में जो बात बता रहे ये हैं इसको और उसको मिक्स कर रहे हैं दो। बगाया का मतलब बागी होता है, कहाँ लिखा हुआ है बगाया का मानी बागी होता है? बगाया के मानी सारे बताए ना, 2 3 4 जितने भी मानी बनते हैं सारे बताए। मैं ये नहीं कह रहा। भाई मिर्जा साहब ने बगाया का मानी आपके सामने बदकार हो। इधर भी जो देखें, बात सुने, वो तहरीर में फर्क है। और मैं आपको ऐसी फारसी में भी जनान बाजारी किया हुआ है और बगाया यार का। ठीक है, बात तो सुन लें कि वो ज़ुरियतुल बगाया बागी और बागी नस्ल जो बगावत करती है। ज़ुर्रियतुल बगाया का भी किया हुआ है मिर्जा साहब ने एक जगह। वो दिखाया। ये बागी कौन कह ले? अगर मिर्जा जी ने ऐसे लिखा है कि वो बागी, अगर मिर्जा साहब ने ज़ुर्रियतुल बगाया का किया हुआ फिर मान जाएंगे आप? फिर तो भाई इसमें कोई मजाके वाली चलो बात जी, ज़ुर्रियतुल बगाया का तर्जमा दो तो खलो जी बड़ा। ज़ुर्रियतुल बगाया का दिखा दो। श्रिंक करो अबू बकर भाई, श्रिंक करो। ए लो जी, ज़ुर्रियतुल ए बगाया। लो जी। दिखाओ जी। वलैसा मिन ज़ुर्रियतुल बगाया, हाँ जी, ए की तर्जमा है जी? की तर्जमा है? और खराब। हाँ जी। हाँ जी। आगे 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 भी दिखाओ ना, आगे तर्जमा पूरा दिखाओ। ए अगे तो हाथ जो अगे तो लफ्ज ही और ने ना, दज्जाल नस्ल दज्जाल। हाँ जी, ज़ुर्रियतुल बगाया का मतलब मिर्जा साहब ने खराब औरतें कीते है। मिर्जा साहब दी नजर च ज़ुर्रियतुल बगाया दा एहो ही मतलब हुंदा सी। एक किताब केड़ी किताब है? नूरुल हक हिस्सा अल ऊला, सफा नंबर 163 रूहानी खजाइन दी 8वीं जिल्द दा। येलो हाईलाइट किया हुआ है, तो दिखाओ तो सही ना, जरा मैं पढ़। ए लो जी, दिखाओ जी, फिर पीछे शुरू तो लाइन दिखाओ जरा, शुरू। ए शुरू तो कित्थों? इधरों शुरू करा, उधरों शुरू, 2 सफे पीछे शुरू करा। भाई ठीक है, कोई जरूरत नहीं। जानना चाहिए कि हर एक शख्स जो वलदुल हलाल है ठीक है, और खराब औरतों और दज्जाल की नस्ल में से नहीं है, वह नस्ल दज्जाल, ठीक है, और दज्जाल की नस्ल में से नहीं है, वो 2 बातों में से एक बात जरूर इख्तियार करेगा। या तो बाद इसके द्रोह को ही छोड़ देगा, या फिर फलाना काम कर। मतलब ज़ुर्रियतुल बगाया का तर्जुमा प्यारी उन्होंने। बात लिखी है। बात सुने, ये तीसरी तहरीर है, इसका कॉन्टेक्स्ट ही अलग है। इसमें उन्होंने इधर क्यों नहीं लिखा बदकार औरतें? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? खराब औरतें मतलब बदज़ुबान औरतें, मतलब जिनकी जुबान नहीं रुकती यार। खराब यार खुदा खराब औरतें होती हैं। तहरीरें ही मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अगर कोई बंदा कहे कि मिर्जा साहब आपकी कह रहा हूं- औरतें खराब औरतें हैं, क्या कहेंगे आप उसको? मतलब बदतमीज औरतें जिनकी जुबान नहीं रुकती, जिनको वल्दुल हलाल के मुकाबल लिखा हुआ है, वल्दुल हलाल के मुतजाद लिखा हुआ है खराब औरतें। ये पीछे अल्फाज पढ़े। वल्दुल हलाल। हाँ जी, जो एक शख्स वल्दुल जो हलाल हलाल है खराब ये तो औरतों आप और कह रहे हैं दज्जाल की ना। नस्ल से नहीं। और खराब ये तो आप औरतों कह और रहे हैं। दज्जाल की नस्ल में से यार नहीं। एक बंदा गल कर लवे यार, की कर दे हो तुसी यार, मेरी समझ ही नहीं आ रही। सैफी साहब बड़ी समझ आ रही मेरे को। ज़रा भाई ये कहना चाहते नहीं, मेरी गल सुनो। मिर्जा साहब ने लिखा है कि जानना चाहिए कि हर एक शख्स जो वलदुल हलाल है हाँ जी, और वो नहीं है, क्या नहीं है? खराब औरतों की नस्ल नहीं है, दज्जाल की नस्ल नहीं है। वलदुल हलाल क्या होता है? हलाल ज़्यादा, जिसका हलाल की औलाद, जिसका नहीं, जिसका निकाह या जिसका हलाल ज्यादा, जो हलाल की औलाद। ठीक है, और बिल्कुल। उस और वो नहीं है, यानी इसके उलट नहीं है। उलट क्या है? ज़ुर्रियतुल बगाया नहीं है। यार आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही यार। ज़ुर्रियत कभी औरत से भी स्टार्ट होती है यार। क्या? औरत नस्ल स्टार्ट करती है बंदे। वो ज़ुर्रियत तो औरत की भी होती है, मर्द की भी होती है ना। यार नहीं यार, इसमें मतलब ये है कि बदज़ुबान औरतें, जो कि बदज़ुबानी। ते मिर्जा साहब नु ये लफ्ज कोई नहीं सी लिखना हुंदा बदजुबान थे। ओ यही खराब ही लिखे है ना, खराब से ये थोड़ी लिख दिए कि खराब औरतें। इधर तहरीर ही अलग है यार। आमिर साहब एवं तो ना करे करो।
तीनों तहरीरें ही मुख्तलिफ है यार। सैफी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ मिक्स ਬੰਦਾ कर रहे हैं आप यार, इतने अच्छे बयान को आप इतनी यार, इस तरह कर रहे हैं यार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਕਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਰਾਬ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਲਾਵੋ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕਾਇਆ ਅਬਦ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫਾਇਦਾ ਯਾਰ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ